Hey, it's Sarwar Ali, and this is the Holyfield International School. And today we're going to talk about one of the important grammar lesson which is very often used in our day-to-day communication. So, in this video, you're going to learn how to express necessity, obligation, and compulsion in English. आज हम necessity means ज़रूरत, obligation means जिम्मेदारी एंड कंपल्शन मजबूरी को कैसे इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं। मैं मूवी के लिए नहीं आ सकता, मुझे पढ़ाई करनी है, उसे दवाइयाँ खरीदनी है, बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए आपको फॉर्म भरना है, आपको ऐसा करना है या ऐसा करना पड़ता है। To form such sentences, we use has to and have to. ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में, जिसके अंत में ऐसा करना है या ऐसा करना पड़ता है को फ्रेम करने के लिए, टू एक्सप्रेस, उसको बोलने के लिए we use has to and have to. Has to, have to are used to express necessity, obligation and compulsion in the present. For example, I have to study. मुझे पढ़ना है. She has to buy medicines. उसे दवाइयाँ खरीदनी हैं. You have to fill up the form. तुम्हें फॉर्म फिलअप करना है, तुम्हें फॉर्म भरना है. We have to work out to keep ourselves fit. हमें अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना है. वर्कआउट मीन्स एक्सरसाइज करना. So now let's have a glance over the structures. The positive structure is subject plus has to or have to plus first form of the verb V1 plus object. पॉजिटिव स्ट्रक्चर में, पॉजिटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ टू और हैव टू आता है, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, V1 यूज़ करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. फ्रेंड्स, रिमेंबर, with has to and have to, we always use the first form of the verb. First form of the verb V1 is always followed by the preposition to. Now the negative structure is subject plus do not, does not plus have to plus V1 plus object. Interrogative structure is do, does plus subject plus have to plus V1 plus object, or WH words plus do or does plus subject plus have to plus V1 plus object. Question mark. Do not is don't and does not is doesn't. So don't is the contracted form of do not and doesn't is the contracted form is does not. That I told you, that I taught you in the last video too. So in negative structure सबसे पहले हम subject यूज़ करते हैं. Subject means जो doer of the action होता है. फिर उसके बाद हम do not और does not में को यूज़ करते हैं. उसके बाद have to का इस्तेमाल किया जाता है. फिर उसके बाद हम V1 का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. इन इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन सेंटेंस में सबसे पहले हम डू और डज का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट एंड देन हैव टू एंड देन V1 एंड देन ऑब्जेक्ट. वो क्वेश्चंस, वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसमें सबसे पहले हम WH वर्ड इस्तेमाल करेंगे, फिर डू और डज का इस्तेमाल करेंगे एंड देन सब्जेक्ट एंड देन हैव टू एंड देन
V1, and at last object and question mark. Have to is used with I, we, you, they, or any plural subject, whereas has to is used with he, she, it, or any singular subject. Now let's have a look on some examples. I have to eat, मुझे खाना है. We have to serve the poor, हमें गरीबों की सेवा करनी है. It's obligation. The government has to build the roads, गवर्नमेंट को रोड बनाना पड़ता है. It's also an obligation. We have to speak English, हमें इंग्लिश बोलना है. It can be a necessity or compulsion. You don't have to wait for me, तुम्हें मेरा इंतज़ार नहीं करना है. His father is rich, he doesn't have to work. उसके फादर रिच हैं, अमीर हैं. He doesn't have to work, उसे काम नहीं करना पड़ता है. Do you have to purchase a new house? क्या तुम्हें नया घर खरीदना है? I have to take this dress, मुझे ये ड्रेस लेनी है. कई बार हम अपनी डिज़ायर को, अपनी इच्छा को, अपनी ज़रूरत को इस तरह पेश करते हैं जैसे हम कहते हैं मुझे यह ड्रेस लेनी है. तो इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं आई वॉन्ट टू टेक दिस ड्रेस, बट दिस सेंटेंस इज़ नॉट एज इफ़ेक्टिव एज आई हैव टू टेक दिस ड्रेस. हम यहाँ पर कहेंगे ये हम अपनी इच्छा को, अपनी डिज़ायर को पेश कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मुझे ये ड्रेस चाहिए. आई हैव टू टेक दिस ड्रेस. दिस इज़ मोर इफ़ेक्टिव देन आई वॉन्ट टू टेक दिस ड्रेस. So now you have to practice all these sentences over and over so that you can be confident and perfect using has to and have to in your day-to-day communication. So now let's understand the use of will have to. सेमीफाइनल में जाने के लिए इंडिया को अगला मैच जीतना पड़ेगा. नेक्स्ट वीक मेरे अंकल की शादी है, उस दिन मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी. अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें वर्क हार्ड, मेहनत करना पड़ेगा. तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा और वो करना होगा. ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने के लिए हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं. So now let's have a look on the structures of will have to. Positive, subject plus will have to plus V1 plus object. Negative, subject plus will not have to plus V1 plus object. Interrogative, will plus subject plus have to plus V1 plus object, or WH plus will plus subject plus have to plus V1 plus object. And will plus not is equal to want. The contracted form of will and not is want. So students, I hope you have understand the structures of will have to. So now let's have a look on examples of will have to. I have a lot of work in the office, so I will have to leave early today. मेरे पास आज ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा. You will have to study hard to pass the exam. तुम्हें एग्ज़ाम को पास करने के लिए मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी. They will have to accomplish that project on time. उन्हें उस प्रोजेक्ट को टाइम पर accomplish means पूरा करना पड़ेगा. I won't have to wait for him. मुझे उसका इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. Will I have to make a call? क्या मुझे कॉल करनी पड़ेगी?
इफ़ यू वॉन्ट टू लूज़ योर वेट यू विल हैव टू ईट लेस। अगर तुम अपना वेट लूज़ करना चाहते हो, वेट कम करना चाहते हो, तो तुम्हें कम खाना पड़ेगा। I'll have to see where that file is. I will have to see if I am free on Sunday. हम अक्सर कहते हैं कि मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे फादर घर पे हैं या नहीं, मुझे देखना पड़ेगा कि मैं संडे को फ्री हूँ या नहीं। सो ऐसे स्ट्रक्चर को भी हम आई विल हैव टू सी से बनाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। आई विल हैव टू सी वेयर दैट फाइल इज़, मुझे देखना पड़ेगा कि वो फाइल कहाँ है। I'll have to see if I am free on Sunday, मुझे देखना पड़ेगा कि मैं संडे को फ्री हूँ या नहीं हूँ। So guys, practice all these sentences over and over and try to frame more sentences like these so that you can improve your communication skills and become confident in English. कई बार हम ऐसा भी कहते हैं कि ऐसा करना पड़ सकता है, यानी कि मजबूरी और संभावना का कॉम्बिनेशन, कंपल्शन प्लस पॉसिबिलिटी। सो पॉसिबिलिटी को हम मे और माइट से एक्सप्रेस करते हैं और कंपल्शन के लिए हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। For possibility we use may or might, and for compulsion we use have to. And for this expression we use the structure subject plus may or might plus have to plus V1 plus object. For example, you might have to wait for some more time to get a job of your choice. तुम्हें अपनी पसंद की जॉब पाने के लिए और इंतज़ार करना पड़ सकता है। He might have to go to New York tomorrow. उसे कल न्यूयॉर्क जाना पड़ सकता है। I hope you have understood this structure. Now let's learn the use of had to. Friends, had to is used to express compulsion in the past. हम had to का इस्तेमाल past में compulsion के लिए करते हैं। ना चाहते हुए भी मुझे बॉस के सामने बहाना बनाना पड़ा। मुझे अपने एक फ्रेंड को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, इसलिए मुझे देर हो गई। ऐसे सेंटेंस जिसमें हम कहते हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ा, वैसा करना पड़ा, जैसे टैक्सी की हड़ताल के कारण मुझे रिक्शा से जाना पड़ा। इंडियंस को ब्रिटिशर्स को टैक्स देना पड़ता था। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें हमें कहना पड़ता है कि हमें ऐसा करना पड़ा या ऐसा करना पड़ता था, हम had to से बनाते हैं। So the structures for had to are positive subject plus had to plus V1 plus object, negative subjects plus did not plus have to plus V1 plus object, interrogative did plus subject plus have to plus V1 plus object, or WH word plus did plus subject plus have to plus V1 plus object in question mark. And the contracted form of did not is didn't. One more thing you need to focus here, in negative and in interrogative sentences we use have to instead of had to. did के साथ हम हमेशा verb की first form यूज़ करते हैं। So here negative and interrogative sentences में
डिड के साथ हम हैड टू के स्थान पर, हैड टू की जगह पर हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। सो नाउ लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स। आई हैड टू क्लीन माई रूम, मुझे अपना कमरा साफ करना पड़ा। शी हैड टू मेक एन एक्सक्यूज़, उसे बहाना बनाना पड़ा। इंडियंस हैड टू पे टैक्सेस टू ब्रिटिशर्स, इंडियन को ब्रिटिशर्स को टैक्स पे करना पड़ता था। माइग्रेंट्स हैड टू वॉक टू देयर होम्स ड्यू टू द लॉकडाउन, लॉकडाउन के कारण माइग्रेंट्स को पैदल घर जाना पड़ा। शी हैड टू सेल हर हाउस, उसे अपना घर बेचना पड़ा। फॉर सम रीज़न ही हैड टू लीव हिज MBA इन बिटवीन, किसी कारणवश उसे बीच में ही अपना MBA का कोर्स छोड़ना पड़ा। आई डिड नॉट हैव टू आस्क हिम फॉर हेल्प, मुझे उससे हेल्प नहीं मांगनी पड़ी। डिडंट यू हैव टू पे फाइन फॉर ब्रेकिंग द ट्रैफिक रूल्स, क्या तुम्हें ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करने के लिए, ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के लिए फ़ाइन पे नहीं करना पड़ा। So friends, practice all these sentences over and over and frame some more sentences like this using had to plus V1 and enhance your communication skills. Apart from has to, have to and had to, there is another structure of having to. However, it's not very common in use, but I would like to tell you for your knowledge. ऐसा करना पड़ रहा है या ऐसा करना पड़ रहा था। To express such expression in English, we use having to plus V1. The present structure is subject plus is, am or are plus having to plus V1 plus object. प्रेजेंट में ऐसा करना पड़ रहा है कहने के लिए हम सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। और ऐसा करना पड़ रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लाउडली बोलना पड़ रहा था, ऐसे स्ट्रक्चर को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए जो स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। लेट्स हैव ए लुक ओवर द एग्जाम्पल्स ऑफ हैविंग टू। आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू कैंसिल माई मीटिंग्स ड्यू टू बैड वेदर, बैड वेदर बुरे मौसम की वजह से मुझे अपनी मीटिंग्स को कैंसिल करना पड़ रहा है। शी इज़ हैविंग टू टेक लीव फॉर हर बैड हेल्थ, उसकी बुरी हेल्थ की वजह से उसे छुट्टी लेनी पड़ रही है। सो यू कैन सी दैट पढ़ रहा है एक्सप्रेस करने के लिए आई हैव यूज्ड आई एम हैविंग टू, शी इज़ हैविंग टू। I was having to scream while talking due to the bad network. बैड नेटवर्क होने के कारण मुझे ज़ोर से बोलना पड़ रहा है। She was having to take medicine due to her illness. बीमारी की वजह से उसे दवा लेनी पड़ रही थी। We were having to face a lot of embarrassment for our bad English. हमारी बैड इंग्लिश की वजह से हमें बहुत शर्मिंदगी फेस करना पड़ रहा था। बट नाउ आई होप practicing all these grammar rules, your English will be effective and impressive, and you will not have to face embarrassment for your English. For future, we'll be having to, but it is never used, so don't need to use our mind for will be having to. जो इम्पोर्टेंट था वो हमने सीख लिया. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो,
please share, comment in the comment box, and don't forget to like and share this video so that many others can have advantage of this video. Also subscribe my channel to get more videos like this on time. Thank you for watching. See you in the next video.